السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت ہم دہلی کے اندر محلہ چوڑی والان پہاڑی املی چوڑی والان میں موجود ہے، جہاں پہ اس ملک کی ایک عظیم پبلک لائبریری جس کا نام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے ہے. ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی جو شخصیت ہے وہ بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس حیثیت سے ممتاز ہے کہ شاہ صاحب نے جو مجددانہ کارنامے کیے ہیں اور ان کے اوپر جو تحقیقات اور ریسرچ ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک مقام ہے. تو آج اس وقت ہم اس پبلک لائبریری میں موجود ہیں اور آپ سے ہم کچھ سوالات کریں گے. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس لائبریری کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا اور کب آپ نے اس کو شروع کیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ لائبریری شروع کرنے سے پہلے ایک 1987 میں یہاں کرفیو لگا تھا، اور لائبریری جس جگہ آپ یہاں موجود ہیں یہ کیرم اور تاش سینٹر تھا. یہاں پہ کیرم کھیلا جاتا تھا اور ایک فرینڈ سرکل تھا، ایک کرکٹ ٹیم تھی بلکہ. تو وہی لوگ شام کو اپنے کام سے آنے کے بعد لیٹ نائٹ پارٹیز ہوا کرتی تھی، کہیں کھانا پینا ہوتا تھا اور رات 11 ساڑھے 11 تک اس ٹائم بند ہو جاتا. جب 87 میں کرفیو لگا اور اندر حالات 4 دن تک بالکل پیک رکھا اور کرفیو نہیں کھلا 4 دن تک، تو 4 دن کے بعد جب ہم لوگ نکلے باہر تو ہم لوگوں نے یہاں کے لیے سامان خریدا، کچھ سبزی خریدی، دودھ بچوں کے لیے، خاص طور سے بچوں کو دودھ کی کمی تھی، دودھ وغیرہ کا انتظام کیا اور سامان لیے اور لانے کے بعد وہ ڈسٹریبیوشن کیا محلے میں فری آف کاسٹ. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا سبھی لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے. تو 3 سال تک بس یہی چلتا رہا، کیا کیسے ہوتا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس ٹائم میں ایک صاحب تھے یہاں، ماسٹر فرید صاحب، ان کی باہر ایک NGO تھی چوڑی والان ویلفیئر سوسائٹی، وہ چلاتے تھے. ان سے مشورہ کیا بھائی ہم لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہماری ہیلپ کیجیے. انہوں نے کچھ ہیلپ کی، بتایا ایسے ایسے یہ ڈاکومنٹ چاہیے، یہ سب تیاری کر کے ہم لوگوں نے 1990 میں یہ شروع کیا. اور اسٹارٹنگ میں ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہمارے آس پاس ویڈیوز ہوا کرتی تھی اس پہ کام شروع کیا. ان کو ایک کارڈ ایشو کر دیا، ان کو میڈیسن فری ملتی تھی، ان کو راشن فری ملتا تھا اور ایک اسکالرشپ چھوٹی سی ہم دیتے تھے پر منتھ ان کو. اس سے اسٹارٹنگ کی 2-3 سال یہی چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی کچھ ایجوکیشن کے بارے میں بھی، کیونکہ اس ٹائم تو بہت پچھڑا علاقہ رہا ایجوکیشن کے تعلق سے. اور آج بھی بہت سارے یہ پوزیشن ہے کہ بہت ساری فیملیز فرسٹ جنریشن لرنر لائبریری کے لیے اسٹارٹنگ ہم نے کی تو سب نے اپنا پرسنل کلیکشن لا کے رکھا پہلے. اس کے بعد اپنے فرینڈ سے، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ بھائی لائبریری اسٹارٹ کر رہا ہے. لوگوں نے ڈونیشن کی. آج 60% کتابیں جو ہیں ڈونیٹڈ ہیں، 40% ہم لوگوں نے پرچیز کی ہوئی ہیں. لگ بھگ 20 سے 25 ہزار کتابیں موجود ہیں یہاں. لگ بھگ 3,500 کتابیں ہیں اور میوات میں ہیں 10-12 ہزار کتابیں. کچھ ابھی اندر اسٹور 2-3 بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت اچھا ذخیرہ ہے کتابوں کا. اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا شروع میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اوپر جو کتابیں ہیں، ناظرین ذرا آپ کیمرے سے یہ کتابیں دیکھیں جو نیچے لگی ہوئی ہیں شاہ صاحب کی خدمات اور حیات کے اوپر. اس میں مجموعہ رسائل، پھر حجت اللہ بالغہ کی تلخیص اور شاہ صاحب کی عمرانی اور معاشی فلسفے پر جو کتابیں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50 کتابیں یہاں پہ ہوں گی کم و بیش. اور جو اوپر لگی ہوئی ٹوٹل ہمارے پاس لگ بھگ 60 سے 65 کتابیں ہیں صرف شاہ صاحب کے اوپر جو کام ہوا. تو یہ ایک بہت یونیک کلیکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ صاحب پہ انگلش میں اور عربی میں جو کام ہوا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں انگلش میں کچھ کتابیں ہیں ہمارے پاس شاہ صاحب کی، اور عربک میں بھی ہیں. اس میں کچھ کتابیں ہیں موجود. لیکن اب جو ریکوائرمنٹ ہے جو یہاں کے ہمارے ملک کے حساب سے یہاں ہندی میں شاہ صاحب کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور اگر ہندی میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو اس کا لازمی بات ہے زیادہ تر لوگوں کو اس کا فائدہ. خاص طور سے UP میں تو اب ہندی ہی چل رہی ہے، اردو تو لگ بھگ وہاں بہت ہی کم ہے. تو اس کے لیے ہندی میں ہونا ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ شاہ ولی اللہ پبلک لائبریری کے ساتھ ساتھ یہ ایک NGO بھی ہے، ویلفیئر سوسائٹی. تو اس کے تحت آپ بیواؤں اور وڈوز اور اسی طریقے سے اسکالرشپ اور ٹیوشن فی، یا پھر یہ ہے کہ
बच्चों को जो कोर्स की किताबें दी जा रही हैं वो एक पूरा एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक निज़ाम आपके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसमें जी। तो ये तो अब सब तक उसका कैसा सफ़र रहा और क्या आपने उसमें अचीव किया है? इसमें हमने 94 से हमने स्टार्ट किया था, ख़ासतौर से जब मालूम हुआ कि यहाँ 8th क्लास के बाद बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उस पर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई इसके बारे में मालूम करें कि ये क्या रीज़न क्या है इसका कि ये ड्रॉप आउट क्यों होते हैं। जब हम लोगों ने मालूमात की पता लगा कि पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को किताबें मुफ्त गवर्नमेंट से मिल जाती हैं और उसके बाद बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम लोग काम शुरू करते हैं और क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे देनी शुरू करी बुक्स। पुराना कोर्स उनसे ले लेते हैं और अगले क्लास का उनको दे दिया जाता है। तो उसमें 22 बच्चों से स्टार्ट किया था और आज अल्लाह का शुक्र है लगभग 700-800 बच्चे हर साल हमसे किताबें ले जाते हैं। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अब पहले तो शुरू में हमने फॉर्म के 10 रुपये रखे थे, वो भी फ्री कर दिया, उसके भी लेने बंद कर दिए, क्योंकि अभी कुछ लोग आ जाते हैं तो फॉर्म फ्री में हमें प्रिंट करके दे जाते हैं, तो वो भी हम लोगों ने फ्री कर दिया है। अच्छा, फिर आपने बताया कि आपका एक निज़ाम ज़कात भी है, उसका कलेक्शन और उसका बाकायदा अलग से आपके यहाँ अकाउंट है। जी जी। तो ज़कात की मद आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से उसका ज़कात की यूटिलाइजेशन है? मद सिर्फ हम लोग बच्चों की एजुकेशन पे ख़ास तौर से उनकी फ़ीस वगैरह हम लोग देना शुरू कर दिया हमने। और इसमें समझ लीजिए कि जो बच्चे कॉलेज में ख़ास तौर से जो कॉलेज में बच्चे और बच्चियां जाते हैं उसमें भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 50% आप लेकर आइए और 50% हम लोग देंगे। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कई हज़ार बच्चे यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें ज़कात भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब चीज़ अलग अलग है। हमारा एक अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट के पैसे लेते हैं सिर्फ, एक अकाउंट है जिसमें सिर्फ ज़कात के लेते हैं और एक में जनरल है, तीनों। सबके और मतलब जी। तो नाजरीन आप देखें कि इस वक्त हम लाइब्रेरी के उस जगह पे जहाँ पे ये तमाम के तमाम कुतुब का कलेक्शन है वहाँ पे मौजूद है और माशाल्लाह कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं और कुछ तस्वीरें भी जो बयान कर रही हैं इस लाइब्रेरी की पूरी स्ट्रगल और उसकी जद्दोजहद को और तकरीबन 35 साल सफ़र को। तो ये अपने आप में दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिविजुअल तरीके पर, इंडिविजुअल तौर पे चंद असहाबे फ़िक्र फ़न ने और जिनको अल्लाह ताला ने कौम व मिल्लत की फ़िक्र और उसकी तामीर के लिए मुंतखब किया और वो खड़े हुए आज ये पूरा एक निज़ाम चल रहा है जहाँ पे तकरीबन कई हज़ार तलबा जो है उन्होंने अपनी एजुकेशन फ्री में मुकम्मल की और कुछ ऐसे नादार तलबा हैं जिनका कोर्स दिया जा रहा है और महल्ले में बेवाएँ वो औरतें जो हैं उनका बाकायदा राशन और उनकी ज़रूरियात भी पूरी की जा रही हैं। इसमें अभी हमारे यहाँ से 2 बच्चे गूगल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको भी मतलब लड़का है जो 8th क्लास में आया था, उसको हम लोगों ने पूरा उसका एजुकेशन कंप्लीट कराई, उसने फिर लॉ किया, ग्रेजुएशन की और आज अल्हम्दुलिल्लाह गूगल में मौजूद। मैक्स मूलर से जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया, आज बच्चा वो IBM में मैनेजर है सर, डिप्टी मैनेजर है IBM कंपनी में। तो ऐसे कई हज़ार बच्चे हम लोगों के अल्लाह का शुक्र है यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करके बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। माशाल्लाह। अब आगे ये बताएं कि मुस्तकबिल में आपके क्या मंसूबे हैं? ज़ाहिर है कि ये जगह भी बहुत छोटी है और आपको ये तमाम आपके मंसूबे क्या हैं, यानी आप और मज़ीद उम्मत के लिए, कौम मिल्लत के लिए क्या करना चाहते हैं? अभी तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें स्पेस मिल जाए, क्योंकि कई हज़ार किताबें अभी हमारे पास स्टॉक में रखी हुई हैं और यहाँ सिर्फ हम गवर्नमेंट से भी बहुत बार हम कर चुके हैं, यहाँ के जो हमारे MLA हैं, काउंसलर हैं, इन लोगों से भी कह चुके हैं भाई कुछ हमें स्पेस दे दिया जाए, क्योंकि ये किताबें अगर बाहर आएंगी तो लाजमी बात है उसका कुछ बेनिफिट होगा। दूसरा ये जो जितना भी ज़ख़ीरा है ख़ासतौर से जो रेयर बुक्स है, हमारे पास 3000 रेयर बुक्स ऐसी हैं जो 100 साल से लेके 400-500 साल तक पुरानी है, वो यहाँ नहीं है किताबें, वो अलग रखी हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो डिजिटाइज हो जाए और वो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे वर्ल्ड में पहुँच जाएँ वो किताबें। तो डिजिटाइज कराने के लिए फ़ंड बहुत ज़्यादा चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा है और फंड हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है, अल्लाह का शुक्र है। तो ज़ाहिर है कि आप लोगों ने जब कदम उठाया तो अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर कदम पे अल्लाह की मदद मिलती है और
फिर हम लोग हर साल जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, जिनके 85% से ऊपर मार्क्स होते हैं, हर साल उनको अवार्ड देते हैं, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, कैश अवार्ड देते हैं। अब कोविड के बाद बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। बच्चों, बहुत गरीब फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास मोबाइल नहीं था, तो हम लोगों ने स्कूलों में मोबाइल भी बांटे, कुछ बच्चों को लैपटॉप भी दिए। तो जैसे जैसे हम लोगों का फंड होता है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जल्द से जल्द के ये लोगों तक पहुंच जाए। फंड रुकता नहीं है हमारे पास। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग शाह वलीउल्लाह पब्लिक लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और मेरा एक मैसेज है अपने आवाम से और अपने कौम के लोगों से, और उन लोगों से जो हमदर्दान फ़िक्र कौम मिल्लत हैं, कि वो आएँ और दिल्ली के अंदर ये जो जगह है चूड़ीवालान में, वहाँ पे विज़िट करें और उस पब्लिक शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी जो है उसको देखें और यहाँ की कुतुब का जो है कि मुशाहिदा करें। फिर उसके बाद देखें कि यहाँ पे चंद अशख़ास की मेहनत से इतनी बड़ी पूरी टीम तैयार हुई और इतना अज़ीमुश्शान काम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े इदारे के तसव्वुर में वो बात नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ के बड़ी दिली खुशी हुई और तसल्ली हुई और इत्मीनान भी, और मुस्तक़बिल में मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये ट्रस्ट और ये वेलफेयर सोसाइटी, फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह पब्लिक लाइब्रेरी इंशाअल्लाह अपने मराहिल को तय करेगी और मुस्तक़बिल में एक बड़े अज़ीमुश्शान कारनामे से आप लोग बहरावर होंगे और कौम मिल्लत इससे बराबर मुस्तफ़ीद होती रहेगी। अभी इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने एक और सिलसिला शुरू किया है। इसमें जो बच्चे 12th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते और कुछ वो जॉब वॉब के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए ये शुरू किया है कि एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, वो 150 कंपनियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं। अब जिस टाइप की उनको रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम की अपनी रिक्वायरमेंट वो उस इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं। इसी टाइप के हमें बच्चों की ज़रूरत है, जॉब अगर चाहिए तो वो उन्हीं के हिसाब से बच्चों को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद उनको 100% वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है। तो वो भी लगभग 15 से 20 बच्चे हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। उनका 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका खर्चा हम लोग उठा रहे हैं। बाकी जिनकी जॉब लग गई वो 2 महीने का हमने उनको उनकी फीस का अरेंजमेंट कर दिया। बाकी जब जॉब लग जाती है तो वो खुद अपनी फीस का खुद ही वहाँ उन्होंने सबमिट करनी शुरू कर दी। तो ऐसे भी शुरू कर दिया है। ये मैकेनिज्म ही है कि आप कुछ यानी सतह पे आके वो पैरों पे खड़ा कर दें। जी जी, ताकि फिर वो शख्स जो है खुद अपने लिए वो असबाब मुहैया करे और वहाँ तक पहुँच के वो अपनी मेहनत से वो उस मंजिल को पाले। तो ये भी एक सिलसिला शुरू हो गया, बच्चों को जॉब मिलने, लड़के लड़कियाँ सब जा रहे हैं माशाल्लाह, सबको जॉब लगनी शुरू हो गई है। तो इस मुख्तसर से इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।